अस्सलाम वालेकुम जी। جی وعلیکم السلام. क्या हाल है सर, ठीक है? الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ मैं बिल्कुल ठीक. आपका नाम सर और आप क्या पढ़ रहे हैं? میرا نام وقاص علی ہے. میں سر MBBS کی اسٹڈی کر رہا ہوں, ڈاکٹر بن رہا ہوں. माशाल्लाह जी. अच्छा, आज हम आपसे ये जानेंगे कि पाकिस्तान के आपकी नज़र में बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? میری نظر میں اس ٹائم پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو جو ہے نا وہ اکانومی کا ہے. ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہو پا رہی. کبھی ڈالر اوپر چلا جاتا ہے, کبھی نیچے آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ IMF سے ہماری جو ہے ڈیل ہوئی تو ہے, ایک $1 ارب آ چکے ہوئے ہیں, لیکن اصل مین ہوگا جو ابھی نیکسٹ ہونی ہے نا, اس میں پتہ چلے گا ابھی کیا صورتحال ہوتی ہے. پاکستان تو کہہ رہا ہے ابھی ہم لوگ $8 ارب کی ڈیل کریں گے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کرتے ہیں, لیکن اگر وہ ہمیں مل جاتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس سے تھوڑی اسٹیبلٹی ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو دوسرا مین ایشو ہے وہ ہے اس ٹائم جو ہے نا وہ انفلیشن کا ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نا, غریب عوام کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو گئی ہوئی ہے. مطلب ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں پہلے جو مطلب نارمل بجٹ میں اپنا گزارا کر لیتے تھے, اب وہ بھی نہیں ہو پا رہا. بہت مشکل ہو گئی, ٹف سچویشن ہو گئی ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں. تیسرا پوائنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ حکومت آ گئی ہے, دیکھو شاید کچھ عرصے بعد اسٹیبلٹی آ جائے, لیکن ابھی تک نا جو 2 منتھ میں حکومت آئی ہے بیٹھی ہے, شاید ابھی ان کا وہ کہتے ہیں نا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے, تو شاید ابھی تک بھی وہ والا سین نہیں ہے اسٹیبلٹی والا. لیکن یہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اگر اکانومی کی بات کروں میں تو پاکستان کا یہ وفد گیا ہے, سعودیہ کا وفد بہت اچھا آیا ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ USA کا آیا ہے. ابھی آگے یہ ہمارا ایران کے ساتھ بہت اچھی پائپ لائن کا منصوبہ ہوا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ اکانومی پہ نا تھوڑا اسٹیبل ہو جائے نا, تو پھر بہت ساری چیزیں. اصل میں مین ایشو ہے اکانومی کا. جب تک اکانومی اسٹیبل نہیں ہوگی, عام آدمی کے حالات بھی بہتر نہیں ہوں گے, اور مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو امید ہی کر سکتے ہیں, امید تو ہمیں اچھے کی رکھنی چاہیے. اکانومی کی آپ نے بات کی تو ہمارے جو لیڈر ہیں جیسے پہلے میاں نواز شریف ہیں, انہوں نے بھی ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو اگر اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو انڈیا کے ساتھ حالات کو بہتر بنانا چاہیے, اپنے جو ریلیشن ہے وہ بہتر کر کے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے. ابھی حال ہی میں ہمارے جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے بھی جو ہے اسپیچ کی ہے, وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم مانگتے پھر رہے ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. ہمارے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں ان کو یہ اس چیز کا بالکل وہ ریلائز کرتے ہیں کہ جی بھارت ہم سے آگے ہے اور ان کی پالیسیز بھی ہم سے بہتر ہے. تو پھر یہ حکومت میں بھی رہتے ہیں, نواز شریف بھی حکومت میں رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی حکومت میں رہے ہیں, لیکن ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کیوں نہیں, وہ سیکھتے کیوں نہیں کہ بھارت سے وہ سیکھ لیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی اکانومی کو بہتر کیا ہے یہ بھی وہی پالیسی اڈاپٹ کر کے اپنے ملک کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں, ان سے سیکھ تو سکتے ہیں کچھ. تو یہ صرف باتیں ہی کیوں کرتے ہیں, تعریفیں کیوں کرتے ہیں, ان کے جو کام کیے گئے ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سر دیکھو ادھر نا ایشو آئی تھنک سو پولیسز کا بھی ہے. ہمارے جو حکمران ہیں جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں انہوں نے پہلی بات تو یہ پولیسز دی ہی نہیں ہے. اگر کوئی دی ہے تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. مطلب اگر کبھی کوئی اچھی چیز چلی ہے نا تو اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں طرح سے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئی. اب انڈیا میں اسٹیبلٹی بہت زیادہ آ رہی ہے. اب دیکھو نا ان کی چلو ٹھیک ہے, جب کہ ہم لوگ یہ پارٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد انڈیا میں بہت اسٹیبلٹی رہی ہے. ابھی ان کی مطلب کہ حکومت ان کی جو ہے وہ 5 سال سے پہلے نہیں گئی, یعنی کہ جتنے بھی اس کا ٹینیور ہے اپنا ٹینیور اس نے پورا کیا, اس کے بعد الیکشن ہوئے تو نئی گورنمنٹ بنی ہے. بالکل ایسے ہی. اب دیکھو نا اب اس دفعہ ان کا مطلب 2 ٹائم جو ہے وہ مودی پرائم منسٹر رہ چکا, اب 3rd ٹائم ہے اس کا. ایک اسٹیبلٹی آئی, انہوں نے ان کو ٹائم دیا ہے, اس کے بعد اس نے پھر ان کو ڈیلیور کر کے دیا ہے, ٹائم بھی دیا اس کو, پھر اس کا رزلٹ بھی انہوں نے دکھایا ہے. تو اب ہمارے جو ہے نا حکمران جو ہے 2-3 سال کے لیے آتا ہے, پہلے 2 سال تو سمجھ نہیں لگتی چیزوں کی, جب لگتی ہے تب اس کو ویسے نکال دیا جاتا ہے. جب وہ کوئی پالیسی بناتا ہے تو وہ ابھی وہ اس پالیسی کے اوپر کام کرنے لگتا ہے تو اگلی حکومت آ جاتی ہے, وہ اس پالیسی کو ختم کر دیتی, وہ اپنی نئی پالیسی سٹارٹ کر دیتی. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر پولیسز کا بھی فقدان ہے, اور میرے اندر سے نا سسٹم بنایا نہیں گیا. اتنا عرصہ گزر گیا نا, یہاں پہ سسٹم موجود نہیں ہے. اب دیکھو نا یہاں پہ یہ تو نا بندہ یہ کہتا ہے فرنٹ پہ چلو چیزیں چینج ہو گئی ہیں, نیچے سسٹم اچھا ہے تو چیزیں اچھی جا رہی ہیں. یہاں پہ ایشو یہ ہے سسٹم نہیں اچھا. آپ لوگ جو بھی پولیسز ہے اس پہ نا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے دور جانے کے بیوروکریسی میں دیکھ لیں, اب ان کا کام ہے وہ بابو بنے ہوئے ہیں سارے, ہر کوئی. اب ہم لوگ مطلب کہ آپ کو اگر میں سمپل ایگزامپل, یہ ویٹ کا اتنا بڑا کرائسس آیا ہوا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھائی ہم نے گندم امپورٹ کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے بھائی سستی مل رہی تھی. وہ بھائی سستی مل رہی تھی تو آج کسی کسان کا آپ کے کسان نے کدھر جانا ہے جس نے اتنی محنت کی ہے, بیج ڈالا, کھادیں ڈالی, محنت کی, سارا کچھ کیا, اب وہ جتنی اس کی کاسٹ ہے اس سے کم ریٹ اسے مل رہا ہے, تو وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ وہ بھی نہیں مل رہا. دیکھو نا مطلب ان کی اتنی گندم ہے, اوپر سے بیچاروں کو اتنا لاس ہوا بھی آپ سوچ نہیں سکتے. اب انہوں نے اتنی اس ٹائم $1 ارب کی وہ امپورٹ کروا لی تھی گندم, اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ٹھیک ہے اگر آپ کو سستی بھی مل رہی تھی تو آپ کو یہ تو دیکھنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ ہم لوگ کس ٹائم میں دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں, کل کی بات ہے, ابھی کل کو جو لاسٹ ایروپلین ہے نا, جو جہاز کل کو لوڈ ہوا, لاسٹ جو گندم والا آیا ہے کل کو, مطلب کل آپ دیکھ لیں 1 مئی تھی ہماری,
या 2 में ही थे। कल को लास्ट लोड हुआ, लेकिन उनके अंदर इतना नहीं था भी हम लोग यार कोई ऐसी पॉलिसीज बना लें भी हमारी मार्च में अप्रैल में जाके गंदम किसान हमारा क्या करेगा। मतलब उस टाइम सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भी आप लोग यार मई में और लेके जा रहे हो आप मार्च में या मई में या अप्रैल में, तो प्लानिंग होनी चाहिए ना, पता होना कि इस वक्त हमारी भी मेरे ख्याल में 15-20 दिन तो हो गए हैं यहाँ पर, हमारी जो गंदम है नई गंदम वो आनी शुरू हो गई है। तो ये पता नहीं क्या सोच समझ के करते हैं, इनको समझ ही नहीं है या इनको पता ही नहीं कि करना क्या होना क्या है, और उस हिसाब से ये सारी इनकी जो प्लानिंग का फुकदान है। सर देखो पहले ही तो बात ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, निगरान हुकूमत थी, उसको कोई ना आवाम का प्रेशर था ना किसी और का प्रेशर था, उन्होंने बस जो उनको बेहतर लगा उन्होंने वो कर दिया और वो बस काम चढ़ा दिया, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अब दूसरा देखा जाए तो अभी भी गंदम जो है वो किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा यार, वो इतना पैसा लगा रहा है लिटरली उसको 3000 क्या 2800 में भी नहीं खरीद रहे लोग, क्योंकि लोगों को भी ये भी लग रहा है और सस्ती हो जानी है, और उनके पास इतनी गंदम उन्होंने गवर्नमेंट तो आपकी ले ही नहीं ना रही, जब गवर्नमेंट से नहीं ले रही तो वो कदर लेके जाएंगे इतनी गंदम, और हर बंदे की पहुंच से दूर है। तो ये कुछ ना पुलिस का फुकदान है, जैसे आप जिस तरह आप इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया में यार ये उनका ना सिस्टम बन गया हुआ है, हमारे यहाँ कोई बात नहीं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सिस्टम बनने में टाइम लगेगा। अभी हमारे यहाँ भी तीसरा चौथी टर्म है, मतलब 2008 से लेके अभी तक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही आई है ना, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं आई, मतलब कोई ऐसा कोई आमर की हुकूमत तो नहीं आई, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसको थोड़ा चलने में टाइम लगेगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बेहतरी की उम्मीद ही कर सकते हैं, अभी उससे पहले तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब ये है अभी चलो ठीक है, अब जो अब हुकूमत है ना यार वो अपना जेब का ना सोचे, वो ना थोड़े लोगों के बारे में सोचे, अच्छी पॉलिसीज लेके आए, लोगों के बारे में जो महंगाई है उसका कोई तोड़ निकाल ले, मतलब आम आदमी को कोई ना कोई उसकी ज़रूरत की चीज़ें ना उसके घर पे ही अच्छी सहूलियात मिलनी चाहिए जिसका फुकदान है, तो ये भी इशू आ रहा है। हम अभी यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे इर्द गिर्द सारे के सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो हमें जो एक ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है कि जो भी स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर, या उसका कोई भी उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, वो इस मुल्क को छोड़ छोड़ के जा रहा है। इसकी क्या वजह है कि मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए, इनको जॉब होना चाहिए कि ये अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो इनको फौरी तौर पर यहाँ पर जॉब मिलनी चाहिए, ये मुल्क छोड़ छोड़ के ना जाएं। इसके ऊपर क्या आप फ्यूचर कैसे देख रहे हो जो स्टूडेंट है यहाँ पर? सर आपका फ्यूचर सिक्योर ही नहीं है यहाँ पे, आप जो डिग्री करते हो आपको पता कल को उसमें आपको जॉब्स ही नहीं मिलनी तो उसका फ़ायदा क्या। अभी आप लास्ट ईयर की एवरेज निकाल लें तो 85% जो यूथ है ना वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई है, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, और आगे वो इधर के रह के करेंगे कि आप देखो ना आगे उनको कोई जॉब्स ही नहीं मिल रही, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, कोई स्किल का ऐसा काम भी नहीं है, अब जो बंदा सिंपल कुछ कर रहा है स्किल वर्क नहीं है उसके पास, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास अपनी हुकूमत चलाने के पैसे नहीं है, वो जॉब्स की कहाँ से क्रिएट करेगी इतनी। अब गवर्नमेंट आई है नहीं, उसको भी ये चाहिए भी लोगों के लिए मेन जो स्टूडेंट्स हैं या जो नौजवान हैं जो यूथ है उसके लिए कोई अच्छी स्कीम्स लेके आए, कोई अच्छे मतलब कुछ सिस्टम्स लेके आए ताकि उनके लिए जॉब्स की अवेलेबिलिटी आए, जॉब्स क्रिएट हों, वहाँ पे लोग रहें और उस तरह बाहर ना जाएं। लेकिन हर बंदा यहाँ पे आपको पता ऊपर से इतनी महंगाई हो गई है भी बंदे डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं लेकिन आगे से कोई उसकी वर्थ ही नहीं है, डिग्री की कोई पूछते ही नहीं है। आप लोग इतना पैसा लगा के इतनी इन्वेस्टमेंट करके और 5-5 साल मेहनत करके जब डिग्री लो आगे उसकी वैल्यू ना हो तो लोगों ने क्या करना है। तो यहाँ पे से बेहतर है, मैं आपको आप सिंपल से एग्जांपल जो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा इंसान है ना, जो डॉक्टर है इंजीनियर है जिसने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है यार वो कमा नहीं रहा जो बंदा बाहर मजदूर कमा रहा है। तो अब ये कंपैरिजन देख लो, अभी तो हम मतलब कि अब हम लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, हमारे घर वाले भी कहते हैं यार उस टाइम इतना पैसा लगाया आपको बाहर ही भेज देते ये, मतलब आपने तो कल को फ्यूचर कोई नहीं सिक्योर, आपने करना क्या है क्योंकि आपको पता है आगे जॉब्स ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है, अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, जॉब तो आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, मुश्किल हालात है नो डाउट इशू है, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए वो थोड़ी अब स्टेबल हो जाए। अब आ गई है जैसे भी है गवर्नमेंट आ गई हुई है, अब उसका काम है पॉलिसीज दे और उस पर इम्प्लीमेंट करे, जब तक इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होगा, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर यही है कि यूथ के लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ ना कुछ मतलब कि रिलीफ दिया जाए और उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए। अच्छा, आप मेडिकल से रिलेटेड हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं आप, तो अभी हाल ही में इंडिया के अंदर चेन्नई के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की आयशा जो कराची से जिसका तल्लुक़ है उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और वहाँ पर तकरीबन 30 लाख इंडियन रुपीज़ के अंदर वो उसका खर्चा है, और वहाँ की एक NGO ने और डॉक्टर ने वो सारा का सारा खुद यानी कि मैनेज किया है, 1 रुपया भी उनका नहीं लगा पाकिस्तानी उस फैमिली का, और ट्रांसप्लांट इंडिया के अंदर हुआ पाकिस्तान। और भी बहुत सारे बच्चे आपने देखा कि पाकिस्तान से जा रहे हैं कि जिनके दिल के सुराख होते हैं या और भी जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट हैं, और इंडिया के अंदर जाकर वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो क्या वजह क्या है पाकिस्तान के अंदर इलाज उनका मुमकिन नहीं है, क्या वजह क्या है? इंडिया में
क्या क्यों जा रहे हैं सारे के सारे अपने ट्रीटमेंट के लिए? सर इंडिया में एक तो ये चीज़ है, उनकी ना मेडिकल फैसिलिटीज़ पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उन्होंने सिस्टम बना दिए हुए, जब सिस्टम बन जाए ना तो वहाँ पे उनकी मशीनरी भी बहुत अच्छी है, उनके पास बहुत अच्छे, नो डाउट हमारे भी डॉक्टर्स काबिल हैं, ये इशू नहीं है अभी इधर कोई ऐसा इशू है अभी यहाँ पे काम नहीं हो सकता। लेकिन अभी सिंध में अभी काम शुरू है, कराची में एक लास्ट मतलब कि कुछ मंथ में ही ना एक का ट्रांसपोर्ट हुआ है, बड़ा कामयाब हुआ है, डॉक्टर ने बहुत अच्छे पहला हुआ अभी पहला हुआ है, तो ऐसा ऐसा काम चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो इंडिया में आप बात कर रहे हैं वो हमसे 20 साल लगे, उन्होंने तो बहुत जल्दी का शुरू किया हुआ है ना काम। तो हम लोग ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, मशीनरी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। ऊपर आपको पता है, आप गवर्नमेंट के लेवल पे होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मतलब वर्किंग में है, उनके पास हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमारे पास इतनी नहीं है। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह काम। अब देखो ना, अगर हम नॉर्मल भी देखें, जो इंडिया अगर 30 लाख है वो पाकिस्तान का एटलीस्ट 50 लाख या 60 लाख तो बनता है, ठीक है, ज़्यादा बनता है, यानी कि वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बनता है। देखो ना इतना ज़्यादा बन गया। अगर वही 30 लाख पाकिस्तान में या 50 लाख में हो या 50 लाख का डिफरेंस आ जाता है, तो हमें कोशिश ये है भी वहाँ से सीख के जो भी चीज़ें हो जाए पाकिस्तान में इसको क्रिएट करें। सबसे जो अहम बात जो आपने की है कि ये हमें उनसे सीखना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि किस तरीके से वो कर रहे हैं सारा कुछ। देखें हमारे वो हमसाए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम वहाँ से इजीली सीख सकते हैं कि हमें यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं, हमें अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं, हम हमारे हमसाए में वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, वो इजी है हमारे लिए, अप्रोच भी इजी है, वहाँ पर हमारा ख़र्चा भी कम आएगा। तो आप समझते हैं कि हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए? ये देखो सीखने का मकसद ये है भी आप लोग कहीं से कुछ भी सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा, हमारे पास भी माशाल्लाह बहुत काबिल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, या हमारे पास सिंपल फैसिलिटीज़ का इशू है, अवेलेबिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। मतलब ये है भी आपके पास जो मशीनरी चाहिए होती है। देखिए ना, आप कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन हुआ है, एक ऑपरेशन के अंदर वो कुछ भी मसला आ सकता था, कुछ भी। ये तो जितनी कहते हैं ना कि जो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार वो ऑपरेशन करेंगे, उतनी ज़्यादा वो उनके हाथ में जो है वो ज़्यादा जो है वो समझे कि एक्सपर्टीज़ आएगी। तो यही है ना कि जब अभी पहला ऑपरेशन हुआ है, जब ज़्यादा ऑपरेशन होंगे तो वो आगे से आगे ज़्यादा वो सीखेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो अगर वहाँ पर जाकर ऑपरेशन के अंदर हिस्से लें, कुछ ऑपरेशन के अंदर अगर वो हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर आकर इजीली वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, अगर सीखना भी चाहिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी जो कराची में शुरू हुआ वहाँ पर उन्होंने बाकायदा वो उसके वर्कशॉप शुरू कर दी हुई हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो सीख भी रहे हैं। उन्होंने एक माशाल्लाह कामयाब हुआ है हमारा ऑपरेट, ठीक है, उसका मतलब है कामयाब हुआ है तो वो मतलब कि सही रहा है। तो अभी ऐसा ऐसा वहाँ से सीखेंगे, जब वहाँ पे 1-2 और ऑपरेट होंगे, वहीं पे प्रैक्टिस होगी, वर्कशॉप्स होंगी, तो वहाँ से लोग और सीखेंगे डॉक्टर्स वहाँ पे। और असल में पहले रुझान कम था ना, जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह विद इन 4 और 5 ईयर ये पाकिस्तान में भी चीज़ कॉमन हो जाएगी। लेकिन ये नो डाउट इसमें कोई इशू नहीं है। अभी हमारी जो मेडिकल फील्ड का भी नॉलेज है जो इंडिया में है वो वाकई बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान की बजाय। मेडिकल के साथ साथ और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं कि जिनमें हम इंडिया से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? सर देखो बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब अब आप ऐसे स्पेसिफिक मैं इंडिया की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आप कोई भी फील्ड है ना, किसी भी कंट्री से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर देखा जाए इंडिया में, अब देखो ना आईटी में है वो बहुत आगे निकल गए हुए हैं, उसमें भी हम लोग सीख सकते हैं। उस तरह बाकी ये मेडिकल की फील्ड हैं उसमें भी हम लोग सीख सकते हैं। चाइना से चलें आप, उसके साथ चाइना से भी हम सीख सकते हैं। चाइना से भी सीख सकते हैं हम लोग, मतलब कि चाइना से भी सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाइना से सीख भी रहे हैं और सीख भी सकते हैं। और पाकिस्तान में भी कोई इतना इशू नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये अभी चीज़ें उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, उन पर थोड़ा टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ना रुझान कम हो रहा है। अब असल में हम थोड़ा पीछे हैं। अब जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लॉन्च बाद आप देखो ना, क्यों है हमारे पीछे रहने की वजह क्या है? सर पुलिस का फुकदान है ना। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, इंडिया में इस टाइम 5G लॉन्च हो चुका है, पाकिस्तान में नहीं हुआ। अब इस पे आप मैं रीजन आपको क्या दूं? सिंपल सी बात है ना, मतलब बेसिक नॉलेज वाली बात है भी। इंडिया में इस टाइम 5G चल रहा है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पर 4G भी नहीं चल रहा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ऐसा ऐसा है, हम लोग ठीक है, वो कंट्री एक डेवलप कर गया हुआ, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग भी ऐसा कर जाएंगे। इसमें कुछ हमारे हुक्मरानों की गलतियां हैं, कुछ उनकी पुलिस का फुकदान है, कोई लीडर नहीं मिला उस तरह से जो मुल्क को लेके चले। ऊपर से अवाम का आप कितना कसूर मानते हैं कि अवाम जो अपने मेंबर सेलेक्ट करती है या वोट जो करती है वो सही बंदों को नहीं करती, इसमें उनका भी कसूर आप समझते हैं? सर मैं अवाम का नहीं समझता। देखो जो वो जिसको बेहतर समझती है अवाम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो जिसको बेहतर समझती है उसको वोट देती है, ठीक है। आगे लीडर्स पे डिपेंड करता है वो मुल्क को किस तरह लेके चलते हैं। मैंने आपको वो बताया, देखो ना इंडिया में भी जो अवाम है ना यार, वो कांग्रेस को भी सिलेक्ट करते ही हैं, ठीक है ना। मतलब अगर वो मोदी को भी करते हैं तो कांग्रेस की पार्टी पे भी वो उसको भी तो करते हैं ना, गांधी को भी सिलेक्ट करते हैं। वो देखते हैं ना कि 5 साल के अंदर परफॉर्मेंस क्या है। अगर 5 साल के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो अगली बार उस पार्टी को वोट नहीं देते।
हमारे तो ऐसे नहीं है मेरे ख्याल में। सर ये आप ये रुझान की अगर बात करें ना, ये KPK में एक हुकूमत हुआ करती थी, आपको शायद लास्ट टाइम पता चला गया, KPK में एक असूल हुआ था, ये पाकिस्तान में था, पाकिस्तान का जो सूबा है ना खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे ये चीज़ चली थी भी, वो दूसरी टर्म ही नहीं देते थे, अच्छा काम किया बुरा किया वो नया बंदे लेके आते थे, उन्होंने सबको अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा ऐसा अब ये तो नहीं बंदा कह सकता उनमें शऊर नहीं है, उनको शऊर है, जो उनको बेहतर लगता है उसको वोट देते हैं, मसला इशू नहीं है, मसला ये है बे फुकदान है पुलिस का, हुक्मरानों का इशू है, इसमें अवाम देखो ना, अवाम को जो बेहतर लगता है उसको वो वोट कास्ट कर, अब हुक्मरानों का काम है जाकर असम्बली में अच्छी कानून साजी करें, इंप्लीमेंट करवाएं चीज़ों पर, चेक एंड बैलेंस रखें, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा कंट्रोल करें, ठीक है, जब वो उनके कंट्रोल में चीज़ें निकलती हैं तो उससे काम खराब होता है, तो बेहतर ये है भी हमें अवाम को भी सुधरने की जरूरत होगी, लेकिन हुक्मरानों को मेन सुधरने की जरूरत है, जो हमारे पॉलिटिक्स में है ना लोग, जो पॉलिटिशियन है, उनको समझने की जरूरत है कि अवाम उनको अगर रिस्पेक्ट दे के भेजती है तो उनके हिस्से की आवाज़ भी उठाएं, वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट भी करें, उनके काम भी करें, तो ये है। देखो सर अब इंडिया में अब थर्ड टर्म आ रही है, मतलब अब वो कहते हैं ना इस दफ़ा नारा लगा हुआ है अब की बार 400 पार मोदी साहब का, ठीक है, तो उन्होंने अगर भाई काम करके दिखाया तो वो नारा लगा रहे हैं ना, अब आप इसमें ये तो नहीं ना कह सकते वहाँ पे इंडिया में हम आप लोग ये तो नहीं कह सकते अवाम में शऊर नहीं है, भाई शऊर है तो वो मोदी को वोट दे रहे हैं, उनको जो बेहतर लगता है हुक्मरान वो उसको ही वोट देते हैं। अब ये आगे हुक्मरान पे डिपेंड करता है वो किस तरह की पॉलिसी लेके आता है, क्योंकि अवाम का कभी सर हमारा काम है हमने वोट दे दिया, उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास वोट की ताकत है, मैंने वोट कास्ट कर दिया है, उसके बाद मेरे पास कोई ताकत नहीं है, ठीक है। अब जिसको मैंने असम्बली में भेजा अपना मेंबर बना के, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे इतने वोट मिले हैं, मैं उनके जो भी मुतालबात हैं जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँ असम्बली में जाके, अगर वो नहीं उठाता तो सर उस पर आप बंदा क्या कह सकता है, हम तो अच्छे के लिए हर दफ़ा देखो ना, हमारी हर एक जो भी आपकी मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, कोई सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, हमने हर दफ़ा चेंज करके भी देखे हैं, ये तो नहीं है अभी एक बंदे को हम लोग, अब इस दफ़ा भी शऊर आया लोगों में, बड़े लोगों ने चेंज करके देखा, नए चेहरे आए हैं ऊपर, लेकिन मकसद ये है भी वो पूरा टोली करप्ट हुआ बैठा होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे सिस्टम बनाने की ज़रूरत है ताकि ऊपर जो मर्जी बंदा आए आपका सिस्टम वर्किंग में हो, ऊपर जो मर्जी आके कमांड करे, आपका सिस्टम अच्छा हो तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपका सिस्टम बेहतर करने की और लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके आने की ज़रूरत है, ये नहीं है भी शॉर्ट टर्म देखो भी हमारा फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है, लॉन्ग टर्म लेके आओ, लोगों का सोचो भी यार अगर आज 2 साल नहीं भी फ़ायदा तो 10 साल क्या फ़ायदा होगा, ये आपके लिए। आप देखो ना अब आजकल IT में है, लोग बहुत आगे निकल गए होंगे, टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उस पर हमने को पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है। अब हमारा IT अब हमें कोशिश करनी चाहिए यार, 2024 आ गया है, 25 आने वाला, हमें 5G क्यों नहीं लॉन्च कर रहे पाकिस्तान में, देखो ना वहाँ पे कंपनीज का भी इशू है, जो कंपनी आना चाह रही है उनको भाई उनको फैसिलिटीज़ दें, उनको आके वेलकम करें, उनको कहें भी आएँ आप लोग लॉन्च करें, तो ये ना हमारा कोई गवर्नमेंट लेवल पे भी इंटरेस्ट की भी ज़रूरत है ना, हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ इतना सोच नहीं रहे, हमें सोचने की ज़रूरत है, और इस तरह ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? कलीम। आपका नाम सर? वसीम लाला। आपका नाम? अमार खान। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं जिस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। आप जी? मैं रेडियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ लास्ट सेमेस्टर का। आप क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। अच्छा, आपका तल्लुक़ कहाँ से है ज़रा ये पहले बताइए। हम पीछे तो वज़ीरिस्तान जी। पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, और एक्स फाटा भी उसको समझ सकते हैं आप लोग, हम वहाँ से तीनों। अच्छा, आज हम आपसे ये जानेंगे कि एक तो पाकिस्तान के मेन प्रॉब्लम जैसे कि इकॉनमी है हमारी, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं जैसे कि मियां नवाज शरीफ हैं, अभी हाल ही में मौलाना फजलुर रहमान ने भी स्टेटमेंट दी है कि जो हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, और हम भीख मांगते फिर रहे हैं, पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा है, और इंडिया जो है वो आगे ग्रो कर रहा है, वो लोगों के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये भी गवर्नमेंट में रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी, नवाज शरीफ भी पहले 3 दफ़ा मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये जब गवर्नमेंट में होते हैं तब इनको नहीं पता होता कि हमने किस मुल्क से ट्रेड भी करनी है, उससे क्या सीखना है, क्या करना है, बाद में ये बातें क्यों करते, बाद में तारीफ़ें भी करते, सारा कुछ करते, पॉलिसीज़ वैसी क्यों नहीं बनाते जैसे कि जिन मुल्कों की ये मिसाल देते हैं। मतलब फजलुर रहमान ने जो कहा है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, तो इसमें कोई शक नहीं, बेशक हमें इंडिया से सीखना चाहिए, इंडिया की तरह डिप्लोमेसी हमें करनी चाहिए, और इंडिया की तरह हमें इंटरनेशनल रिलेशन भी रखने चाहिए रशिया के साथ, कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ, जिसमें चाइना और रशिया तभी जो मुआहदे है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि अब इंडिया को भी चाहिए और पाकिस्तान को भी, साथ में एक सजेशन तो हमारा बनता है कि ये दे दे कि पाकिस्तान भी
اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا اور جتنے بھی ساؤتھ ایشین اسٹیٹ ہے یہ اس کمیونسٹ بلاک کا حصہ بنے. اچھا. اچھی بات ہے ان کے جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو ہم انہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور پولیٹیکلی کلچرلی دیکھا جائے تو ہم امریکن اور ویسٹرن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے, یہی تو ہمارا وجہ ہے کہ ہم آج کے اسٹیٹ اور کس امریکہ سے جان چھڑا سکتا ہے پاکستان؟ کبھی نہیں. اگر ہم سوچیں پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہی ان کی ڈپلومیسی, ان کے انٹرنیشنل ریلیشن امریکن بیسڈ ہے. یہ کیسے الزام وغیرہ تو ہم نہیں لگا رہے, البتہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کی وضاحت جنرل ایوب خان بھی اپنی کتابوں میں کر چکا ہے, پریزیڈنٹ مشرف بھی کر چکا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جنرل ضیاء, اختر عبدالرحمن اور حساس ادارے کے رائٹر اور اس کا نام تھا بریگیڈیئر ارشاد ترمازی صاحب, یہ سب کر چکے ہیں. یہ اگر ہم نہ بھی کہیں تو یہ اس کی وضاحت وہ کر چکے ہیں. اور پاکستان بے شک ان کو چاہیے کہ وہ انڈیا سے کچھ سیکھے, ان سے انٹرنیشنل ریلیشن سیکھے, ان سے ڈپلومیسی سیکھے, ان کی فارن پالیسی دیکھیں, اور ان کی انٹرنل جو سچویشن ہے ان سے وہ سیکھے, ان کی ایجوکیشن سے سیکھے, ان کی اکنامک پالیسی سے سیکھے, ان کی آرمی چیف کی اسپاٹ کو دیکھے اور ہماری بھی دیکھیں. بے شک یہ تو ہونا چاہیے کہ ہم انہی سے سیکھنا چاہیے اور ان کی پالیسی سے سیکھنا چاہیے. ہاں جسٹ کاپی پیسٹ نہیں کرنا چاہیے ان کی پالیسی, کیونکہ ان کی پالیسی ان کی جیوگرافی بیسڈ ہے اور ہماری پالیسی ہماری ہوگی. پر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ایک نیا کیا بہتری آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں جو ہے پاکستان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اپنی, اگر فارن پالیسی کی بات کی جائے تو جیسے آپ نے بولا کہ ریلیشن یعنی پاکستان کو رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے؟ ہاں, میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ جیوگرافیکلی ہم وی آر کنیکٹڈ ود رشیا. جیوگرافیکلی ہم رشیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں انہی کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہیے. یعنی اس خطے کی جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر ہونے چاہیے. بے شک پھر یہ سچویشن نہیں ہوگا کہ جنگ جب ہم شروع کریں گے اور امریکہ سے کچھ پہنچیں گے تو اس میں مہینے لگے, اور جب یہاں سے پہنچے گا کوئی مدد, جب یہاں سے کوئی اکانومی پہنچے امریکہ نے گی. کب پاکستان کا ساتھ دیا؟ کبھی بھی ساتھ نہیں دیا پاکستان کا, کسی جنگ میں ساتھ نہیں دیا. باتوں باتوں میں ہمیشہ ساتھ دیا ہے, پریکٹیکلی ایک چیز میں بھی نہیں. حقیقت تو یہی ہے. اچھا, اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اکانومی بہتر بنانے کے لیے یہ تو چلو ہو گیا طرح کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے, انویسٹمنٹ کیسے پاکستان میں زیادہ آ سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان اکانامک پالیسی جو ہے, یہ پالیسی میرے خیال سے بالکل اب ڈیمیج ہو چکی ہے. تو ایک نئی عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے پورے یونٹس کے ساتھ, پشتونخوا, سندھ, بلوچستان اور پنجاب, ان سب کے درمیان ایک نیا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے. دیکھا جائے تو ابھی جو گندم وغیرہ کا پرابلم چل رہا ہے تو گندم پنجاب کا ہے بے شک, مگر اس گندم کے پانی کہاں سے آ رہے ہیں؟ پشتونخوا انڈسٹری پنجاب کا ہے, مگر ان کے کوئلہ اور یہ چل کس بجلی پر چل رہے ہیں؟ ترپیلا ڈیم, کے پی کے. اب گندم جب یہاں پر اگتے ہیں اور وہ گندم کے پی کے تک, پنجاب سندھ اور بلوچستان تک نہیں پہنچ جاتے, نہیں دیے جاتے. اب کوئلہ ہماری بجلی پشتونخوا کی ہے, اور جتنے بھی ان طرح کی نیچرل ریسورسز ہیں وہ پشتونخوا کے ہے, تو پھر تو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی پشتونخوا میں رہے. مگر نہیں, وہاں سے گیس یہاں تک پہنچ سکتا ہے, وہاں سے بجلی یہاں تک پہنچ خیبر سکتا ہے. پختونخوا پنجاب کے اندر تو ابھی 3000 کے قریب ریٹ ہے گندم کا, ادھر آپ کو آئیڈیا ہے کیا ریٹ ہوگا؟ ریسنٹلی تو گندم بند ہے. اچھا, ادھر سے جا ہی نہیں رہی. ہاں, تو جو امپورٹ کی ہے, کافی ساری گندم جو امپورٹ کی ہے تو وہ ادھر پنجاب کے اندر ہی رہ رہی ہے, ادھر نہیں جا رہی وہ بھی. ابھی تک گندم پر پروویژنل ریسٹرکشن ہے, وہ ایک صوبے سے یعنی پنجاب سے نیکسٹ کوئی اور صوبے پر نہیں بیچ سکتا کوئی. ہاں, البتہ اگر پہنچے گی تو یہ پھر بلیک کے راستے پر پہنچے گی, اور وہاں پر اس کا ریٹ ظاہری بات ہے ڈبل ہوگا. اور آج کی ریٹ اگر میں بتاؤں تو یہ تو معلوم نہیں کہ آج کی ریٹ کیا ہے. جی, البتہ مہنگا یہاں سے ہوگا, یہ گارنٹیڈ ہے کہ مہنگا یہاں سے ہوگا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ریسورسز کے اوپر پورے پاکستان کا حق ہے, اسی طرح جو گندم ہے اس کے اوپر بھی پورے پاکستان کا حق ہونا چاہیے. برابر ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے, جو ریٹ پنجاب کے اندر ہے وہی ریٹ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. آپ ابھی وزیرستان سے یہاں پر اسٹڈی کرنے آئے ہیں, آپ اپنی جو ایجوکیشن کے بعد میں اپنے فیوچر کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کچھ اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھا جائے تو پاکستان کے اس سچویشن میں ہم اگر اپنی فیوچر کی بات کریں تو کافی کمزور لگ رہا ہے فیوچر. البتہ اپنی محنتوں سے اور اپنی اسٹرگل سے اور اپنی ہی کوششوں سے اپنی کریڈیبلٹی سے فیوچر تو بنائیں گے, گاڈ ویلنگ بنائیں گے. تو ہاں, پاکستان کی جو حالات ہے خدا کرے کہ یہ بہتر ہو جائے, اللہ کرے کہ یہ بہتر ہو جائے, پھر کچھ ہو جائے گا. اور اگر یہ حال رہا تو پھر تو 10-12 لاکھ 30 لاکھ پاکستانی جو باہر گئے ہیں ڈگریوں کے ساتھ, شاید پھر اور ڈگری لینے والوں کا بھی یہی حال ہو کہ وہ بھی ڈگری لے کے باہر ہی جانا پڑے ان کو. چلو جی, ہوپ فار دا بیسٹ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا فیوچر اچھا رہے, آپ بھی یہاں پر اپنا فیوچر سیف آپ کو محسوس ہو, اور جب آپ کمپلیٹ کریں اپنی اسٹڈی تو آپ کو اچھی کوئی یہاں پر پاکستان کے اندر بھی جاب مل جائے اور آپ کو باہر جانے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ لوگوں کا.